اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ جیسا کہ بہشت ٹی وی کی جانب سے ماہ رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے اور آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ تمام ناظرین سننے والوں کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو، اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو کی ابتدا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ اور جس کی آیت نمبر 71 آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ، یعنی ہر دور میں امام کا ہونا لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ چھٹے امام نے رسول خدا سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے امامت کا منصب جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا اور ابراہیم نے جس منصب کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہ نے وہ امامت کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیوں امامت ضروری ہے؟ اس حدیث میں رسول اکرم فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی امام کا وجود ہر دور میں لازمی ہے، امام کے بغیر نجات نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے قیامت کے بارے میں جب ذکر کیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام انسانوں کو پکاریں گے ان کے امام کے ساتھ، یعنی اللہ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو فردن فردن نہیں بلائیں گے بلکہ ہم ان کے امام کو بلائیں گے۔ جب امام اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا تو اللہ کہے گا کہ جن کا امام اتنا عظیم ہے نہ جانے ان کے چاہنے والے کتنے عظیم ہوں گے، یعنی امام کی وجہ سے لوگوں کی نجات ہے۔ تو آج اس امام پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جس امام کی ولادت سن 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی اور جس کا نام حسن ہے۔ امام حسن کا نام امام حسن نام ہے اور القابات میں سبت، سید، طیب، زکی، ولی یہ امام علیہ السلام کے القابات میں سے ہے، اور کنیت جو امام حسن کی ہے وہ ابو محمد ہے۔ ابو محمد امام کی کنیت ہے اور باقی میں نے جو ذکر کیے وہ امام کے القابات ہیں۔ امام علیہ السلام کی ولادت سے قبل حضرت ام الفضل جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ہیں وہ خواب دیکھتی ہیں، اور خواب دیکھتی ہیں کیا اس خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے اعضاء میں سے ایک عضو جدا ہوا اور آ کر میری گود میں گرا۔ یہ جناب ام الفضل روایت کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اسی خواب میں میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ کے اعضاء میں سے ایک عضو جدا ہوا اور آ کر میری گود میں گرا، تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہے، عجیب و غریب خواب ہے کہ جس میں رسول اللہ کے اعضاء میں سے ایک عضو جدا ہوا۔ کہتی ہے کہ میں پریشانی کے عالم میں رسول خدا کی بارگاہ میں آئی اور آ کر سوال کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیے، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ رسول اللہ کی چچی ہیں، یہ عباس کی زوجہ ہیں جو حضرت عبد المطلب کے فرزند ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے چچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خواب بتائیے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب ام الفضل نے خواب سنایا تو رسول اللہ نے فرمایا اے چچی جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو میرا ایک عضو آپ کی گود میں آ کے گرا ہے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو ایک فرزند دینا ہے،
وہ फर्जन जैसे ही दुनिया में आएगा वो आपकी गोद में परवरिश पाएगा, जिसकी खिदमत आपने करनी है। ये उज़वा कोई और नहीं, ये मेरा नवासा है। बस रिवायत कहती है कि ये तो विलादत से कब्ल का ख्वाब है। अब कुछ दिन के बाद रसूल खुदा जब सफर पे तशरीफ ले जाने लगे तो एक मरतबा अपनी बेटी फातिमा के घर आए। रिवायत कहती है कि जैसे ही रसूल खुदा आए, अपनी बेटी को प्यार किया, सलाम किया और उसके बाद कहा, ए बेटी फातिमा, मैं सफर पे जा रहा हूं, मुझे 3 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। मैं आपको बशारत दे रहा हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में अल्लाह आपको एक बेटा अता फरमाएगा। ए बेटी फातिमा, मगर उसे कुछ पिलाना नहीं, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक आपने उसे कुछ नहीं पिलाना। रिवायत कहती है कि रसूल खुदा सफर पर चले गए और इमाम हसन की विलादत हो गई। रिवायत कहती है कि 3 दिन गुजर चुके, रसूल खुदा नहीं आए। जब चौथा दिन हुआ तो जनाब सैयदा को ममता ने मजबूर किया। माँ होने के नाते जनाब सैयदा ने चौथे दिन अपने बेटे इमाम हसन को अपना दूध पिलाया और रसूल अल्लाह 5वें दिन वापस आए सफर से और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर आए और आकर पूछा, ए बेटी फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें फर्जंद दिया? जनाब सैयदा कहती है, हाँ बाबा, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया, मगर बाबा मैं माजरत करती हूं कि आपने मुझे मना फरमाया था कि जब मेरा नवासा इस दुनिया में आ जाए, जब मेरा बेटा इस दुनिया में आ जाए, उसे कुछ ना पिलाना। मगर बाबा मैं माँ थी, मजबूरी के आलम में जब 3 दिन गुजर चुके तो मैंने चौथे दिन अपने बेटे को दूध पिलाया। और रसूल खुदा आगे बढ़कर कहते हैं, बेटी फातिमा, ये मेरा ना आना भी मशीयत खुदा था, परवरदिगार ने मुझे रोके रखा। इसलिए रोके रखा क्योंकि अल्लाह ने इमामत को नस्ल इमाम हुसैन में रखा है। ये जो नस्ल इमामत इमाम हुसैन के यहाँ चलनी है, इसीलिए अल्लाह ने मुझे रोके रखा और आपने हसन को दूध पिलाया। बस रिवायत कहती है, इसके बाद रसूल अल्लाह ने पूछा, बेटी फातिमा, बताओ तुम इस बच्चे का नाम क्या रखा? जनाब ज़हरा कहती हैं, बाबा मैं अमीर अल मोमिनीन यासूबुद्दीन अखी रसूल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सबकत नहीं ले सकती। जब जनाबे सैयदा ने ये गुफ्तगू की तो जनाब अमीर अल मोमिनीन से जनाब सैयदा कहते कि मैंने कहा कि बेटे का नाम रखिए, तो अमीर अल मोमिनीन ने भी यही फरमाया कि मैं अपने आका, अपने मौला और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकत कैसे हासिल कर सकता हूँ? जब तक रसूल खुदा नहीं आते हम इस बच्चे का नाम नहीं रखेंगे। बाबा अभी तक बच्चे का नाम नहीं रखा गया, आप नाम रखिए। अब रसूल खुदा आगे बढ़कर फरमाते हैं कि जब ए बेटी फातिमा, तुमने अली पर सबकत हासिल नहीं की, अली ने मुझ पर सबकत हासिल नहीं की, फिर मैं कैसे अल्लाह पर सबकत हासिल कर सकता हूँ? मैं भी उस वक्त तक इस बच्चे का नाम नहीं रखूंगा कि जब तक मुझ पर वही नाजिल नहीं होती। बस रिवायत कहती है कि रसूल अल्लाह इंतजार करने लगे कि एक मर्तबा अल्लाह ने जिब्राइल को नाजिल किया और जाकर कहिए जिब्राइल मेरे नबी मुस्तफ़ा से कि अल्लाह सलाम भेज रहा है। और अल्लाह ने इस बच्चे का नाम, क्योंकि अली तमसील हारून है, अली मिसले हारून है और हारून के बेटों के नाम थे शब्बर और शुबैर, तो बस मैं अपने नबी के नवासों के नाम अल्लाह कहता मैं रखना चाहता हूं हसन और हुसैन। लेकिन जैसे ही हजरत जिब्राइल ने कहा कि नाम इनका रखिए शब्बर और दूसरा नाम बताया शुबैर, तो एक मर्तबा रसूल खुदा ने कहा, ए जिब्राइल, ये नाम तो इब्रानी जबान के नाम है, हम तो चूंकि अरब हैं, हम ये नाम कैसे रख सकते हैं? तो परवरदिगार की तरफ से पैगाम दिया जिब्राइल ने कि अल्लाह फरमाता है मेरे नबी मुस्तफ़ा से कहिए कि ये वो नाम है जो हमने इससे पहले किसी को नहीं दिए। ये इब्रानी जबान में शब्बर और शुबैर हैं, मगर अरबी में इनका तर्जुमा हसन और हुसैन बनता है। ये शब्बर जो है इसे अरबी में हसन कहते हैं, जो शुबैर है उसे अरबी में हुसैन कहते हैं। हमने ये नाम इन अरबों से पोशीदा रखे। किसी अरब में ये हिम्मत नहीं थी कि ये नाम
इनके नामों से पहले कोई रखता। अब जैसे ही नाम इमाम हसन रखा गया, रिवायत कहती है कि रसूल अल्लाह ने 7वें दिन इमाम हसन के बाल जो उतरवाए गए उनके बराबर चांदी दी गई, और अकीके के तौर पर रसूल अल्लाह ने 2 दुम्बे ज़िबा किए। यानी रसूल खुदा ने इमाम हसन के लिए जो खुशी की, और खुशी किस तरह ना करते कि इमाम हसन वो कि जिनके लिए मैं ये कहूँ कि रसूल खुदा के जब परेशानी के आलम में थे, कि जब रसूल अल्लाह के फर्जंदान इस दुनिया से चले गए और लोगों ने ताना दिया कि रसूल अल्लाह अबतर हैं, तो अल्लाह ने रसूल को खुशखबरी देते हुए फरमाया था, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुम्हें कौसर अता की। तो बस कौसर की पहली तफसीर का नाम इमाम हसन है। क्यों ना हो रसूल खुदा खुश, क्योंकि इमाम हसन सूरह कौसर की पहली तफसीर है, और दूसरी तफसीर का नाम इमाम हुसैन है। और इमाम हसन के इल्म के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो अल्लाह ने वो इल्म इन्हें अता फरमाया कि जो अल्लाह ने अपने नबी मुस्तफ़ा को अता फरमाया। और रसूल खुदा के पास अना मदीनतुल इल्म, और इमाम हसन के वालिद अमीर अल मोमिनीन के लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया व अलीउन बाबुहा, कि मैं मुस्तफ़ा इल्म नबुव्वत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो एक तरफ हसन और रसूल खुदा के भी फर्जंद है, एक तरफ हसन अमीर अल मोमिनीन के भी फर्जंद है। अब सुनने वाले सामीन कहेंगे कि इमाम हसन तो नवासे रसूल हैं, ये रसूल अल्लाह के फर्जंद कैसे हुए? तो भाई आइए कुरान की तरफ तवज्जो दीजिए कि जिसमें परवरदिगार आलम ने जब रसूल खुदा ईसाइयों के साथ मुबाहले में जाते हैं तो उस मुबाहला में अल्लाह की आवाज आती है, फमन हाजक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व अबनाकुम। अल्लाह फरमा रहा है, ए हबीब, ए मुस्तफ़ा, इन ईसाइयों से कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तो मैंने कहा कि एक तरफ इमाम हसन रसूल के फर्जंद है, एक तरफ अमीर अल मोमिनीन के फर्जंद है। अगर कुरान की रूह से देखा जाए तो हसन इस आयत के मिज़दाक हैं कि जिसमें अल्लाह कह रहा है, हबीब इन ईसाइयों से कहो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तो रसूल अपने बेटों को नहीं लेकर गए, जो तारीख ने लिखा कि बेटे मौजूद थे, मगर अपने बेटों की जगह हसन को, इमाम हुसैन को लेकर गए। यानी कुरान की रूह से हसन और रसूल खुदा के फर्जंद है, कुरान की रूह से इमाम हुसैन रसूल खुदा के फर्जंद हैं। तो बस ये वो इमाम हसन हैं कि जो अमीर अल मोमिनीन के भी फर्जंद हैं, जो रसूल अल्लाह के भी फर्जंद हैं। और इनके इल्म के क्या कहने कि रसूल जो मदीनतुल इल्म है, और रसूल ने अपना इल्म हसन को अता फरमाया। वो अलीयुन बाबुहा अमीर अल मोमिनीन जो वालिद गिरामी हैं, उन्होंने अपना इल्म हसन को अता फरमाया। वो सैयदा जो माकाना वमा यकून की आलिमा है जनाब सैयदा, वो अपना इल्म अपने बेटे इमाम हसन को अता फरमाती है। वो अल्लाह के जिसने इमामत का मनसब इमाम को दिया है, इमाम हसन को वो इल्म भी अता किया है। अल्लाह आलिमुल खबीर है, अलीमुल खबीर है, अल्लाह ने अपना इल्म भी हसन को अता फरमाया। इसी तरह इल्म का एक वाकया कि एक मर्तबा ये रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से है, कहते कि हम एक जगह पर तशरीफ फरमा थे, इमाम हसन भी मौजूद थे। रिवायत कहती है कि एक कसाब एक गाय को लेकर हमारे सामने से गुजरा। एक मर्तबा इमाम हसन ने गाय की जानिब देखा और कहा कि ये गाय हामला है और इसके पेट में एक बछड़ी है कि जिसके पेशानी पर और दुम के सिर पर सफेदी का निशान है। अब ये कहना था कि एक मर्तबा वो कसाब चला अपने उस जानवर को लेकर, और जब ये बात हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और उनके दीगर दोस्तान ने सुनी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि अब्बास के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये अपने वक्त के आलिम भी हैं, अपने वक्त के रावी भी हैं, लेकिन इन्होंने इल्म दीन जितना हासिल किया वो अमीर अल मोमिनीन की जात है।
इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से इल्म लेने वाले अब्दुल्ला इब्न अब्बास मगर एक मर्तबा सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि इमाम हसन ने कह दिया कि ये गाय हामला है और इसके अंदर एक बछड़ी है जिसकी पेशानी पर सफ़ेदी का निशान और दुम पर सफ़ेदी का निशान है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जानते हैं कि परवरदिगार आलम के पास ही इल्म गायब है, क्योंकि अल्लाह सूरह लुकमान की आयत नंबर 34 में फरमाता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गैसा। अल्लाह फरमाता है कि बेशक कयामत का इल्म अल्लाह के पास है और वही अल्लाह बारिश बरसाता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और अल्लाह ही के पास इल्म है कि माओं के पेट में क्या है। यानी ये वो आयतें हैं कि जो अल्लाह के इल्म गैब पर दलालत कर रही है कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, कयामत का इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कयामत कब आएगी। व युनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश अल्लाह ही नाजिल फरमाता है। और आगे अल्लाह फरमाता है व यअलमु मा फिल अरहाम व यअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह ही जानता है कि माओं के पेट में क्या है। तो ये हसन ने कैसे कह दिया कि ये गाय हामला है और उसके पेट में बछड़ी और सफेदी का निशान? कहते कि हम गए उस कस्साब के पीछे गए और जैसे ही हम कस्साब के यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि उस कस्साब ने इसी असना में उस गाय को ज़िबह किया। जब हमने देखा कि उसके पेट से वही बच्चा निकला जिसकी निशानदही इमाम हसन ने फरमाई थी, और वाकईन उस बछड़ी की पेशानी पर सफेदी का निशान भी है और उसके दुम के सिर पर भी सफेदी का निशान है। जब ये देखा तो हम वापस इमाम की बारगाह में आए और आकर कहने लगे यब्ना रसूलिल्लाह, ए फर्जंद अमीर अल मोमिनीन, ए फर्जंद ज़हरा, ये तो इल्म गैब है। इल्म गैब तो अल्लाह जानता है। अल्लाह फरमाता है व यअलमु मा फिल अरहाम, जो माओं के पेट में है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इमाम हसन ने मुस्कुरा कर पूछा ए अब्दुल्ला, बताओ ये तुमने कहाँ पढ़ा? कहा मौला ये कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो उस वक्त इमाम ने मुस्कुरा कर कहा ये सामित कुरान है, अल्लाह ने इसका वारिस नातिक कुरान को बनाया है। और अल्लाह ने सूरह फातिर में फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह फरमाता है फिर आपने अपनी किताब का वारिस बनाया उन लोगों को जिन्हें हमने मुस्तफ़ा बनाया है। इमाम हसन कहते हैं कि मुस्तफ़ा भी हम में से हैं, मुर्तज़ा भी हम में से हैं, और मैं हसन मुजतबा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस कुरान में वो आयत कहाँ पर हैं कि जो रात की तारीकी में नाजिल हुई, जो दिन की रोशनी में नाजिल हुई, जो हज़र में नाजिल हुई। यानी इमाम हसन बताना ये चाह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक इस कुरान से है और इस कुरान का ताल्लुक हम में से है, हमसे है। क्यों कि रसूल अल्लाह ने इस दुनिया से जाते हुए यही फरमाया था इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताब अल्लाहि व इतरती व अहल बैती, हे मेरी उम्मत सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरह कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे अहलुल बैत। मा इन तमस्सकतु बिहिमा वलन तज़िल्लु बादी हत्ता यरदन अलैयल हौज़, अगर तुम इन दोनों के साथ यानी अल्लाह की किताब और अहलुल बैत के साथ मुतमस्सिक रहोगे हरगिज हरगिज गुमराह ना होंगे, यहाँ तक ये दोनों हौज़े कौसर तक पहुंच जाएंगे। यानी इमाम हसन ने बताया कि कुरान में अगर ये बात है कि इल्म गैब अल्लाह जानता है तो बस उस कुरान के वारिस हम अहल बैत हैं, उस कुरान की सही तफसीर करने वाले हम अहलुल बैत हैं, और अल्लाह ने हमारे ही फेल को कुरान बनाया है। इमाम हसन के क्या कहने, यानी जितनी आयतें अल्लाह ने अहलुल बैत के लिए नाजिल फरमाई हैं उन सब में इमाम हसन शामिल हैं। अभी आयत मुबहला आपके सामने पेश की जिसमें इमाम हसन मौजूद हैं, और जब इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार हुए और जो नजर के रोजे अमीर अल मोमिनीन और जनाब सैयदा ने रखे, उस आयत में भी इमाम हसन शामिल है कि जहां परवरदिगार आलम फरमाता है सूरह दहर में व युतइमुन तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना देते हैं। तो इस आयत में भी इमाम हसन शामिल हैं। और जब अल्लाह ने सूरह शूरा में फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि
अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए मेरे हबीब अपनी उम्मत से कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं चाहता मगर ये कि तुम मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। तो इमाम हसन इस आयत कुर्बा में शामिल हैं। इमाम हसन उस वक्त भी शामिल है कि जब रसूल खुदा ज़ौफ महसूस करते हैं और अपनी बेटी जनाब सैयदा फातिमा के घर आते हैं, और जब चादर यमनी मांगते हैं और जब चादर ओढ़ लेते हैं तो उस चादर में सबसे पहले दाखिल होने वाले अगर कोई हैं तो वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, कि जिन्हें रसूल खुदा ने अपनी आगोश में लिया, अपने साथ उस चादर में लिया, और उस चादर पर जो अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा, उसके मिस्दाक भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। यानी कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है कि जो अल्लाह ने अहलुल बैत की शान में नाजिल की हो और उसमें इमाम हसन शामिल ना हो। यानी पूरे कुरान में जहां भी अहलुल बैत का तज़किरा आया उसके मिज़दाक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो सब ने खुशी की है, और ये खुशी आज सब मोमिनीन के लिए भी है। बस इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की तौफीक इनायत फरमाए, और अल्लाह ताला बहिश टीवी और तमाम सुनने वाले नाजरीन की इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।